Hello everyone, my name is Pratik Tambe and today I am going to teach you the topic projectile motion. Till now we have discussed straight line motion, that is motion along a straight line. Now we have to discuss the motion in a plane curve, plane. So projectile motion is one of the classical example of such a motion. So first of all I will show you what is a projectile motion. See, if I take this chalk as a particle and I throw it like this in the air, then we can see that it goes along a curve. So this motion along this curve is called projectile motion. So by this we get the definition of what is a projectile motion that I have written is when a particle is thrown obliquely from the earth's surface. Obliquely means at some angle from the earth's surface, then it travels along a curve. This motion is called projectile motion and this particle which I am throwing is called a projectile. The example being, if a cricketer throws a ball in the air, that is a projectile motion. If a footballer kicks a ball, then the ball will also travel, and that is also projectile motion. This motion can be explained only, can be drawn only in a plane, as you can see there. I have drawn there. So I will show, let's discuss this motion further. Here I have drawn the figure for the projectile motion. Let us consider this Ax, this x, this is origin, or we can say this point is also A, and this point I will take as QRS, okay, S, okay. So this is our origin and this is x axis and this is y axis, positive x axis, positive y axis, and from this O a particle is thrown at an angle theta with a velocity, initial velocity u, then it will move along this curve and it will finally land at point B. The velocity at any point over this curve can be drawn as a tangent. If we draw a tangent at any point to this curve, that will represent the direction of the velocity at that point. So at P the direction is this along the tangent and UP is the magnitude we considered. At S we can draw the tangent and we get U naught as the velocity along the horizontal x-axis, and similarly at Q we get the velocity like this, and at B it will be like this. Okay, now further we can break this velocity along x and y direction. See, if we have to analyze a planar motion, that is a bit complicated. So for making its analysis easy, हम क्या करते हैं, उसको x और y डायरेक्शन के अलॉन्ग ब्रेक कर लेते हैं. तो x डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर हम इसकी वेलोसिटी को ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा u cos थीटा कंपोनेंट, और y डायरेक्शन को अलॉन्ग इसका कंपोनेंट मिलेगा वेलोसिटी का, वो मिलेगा u sin थीटा. ओके, तो अब इसका मोशन हमें एनालाइज करना है तो हम x और y डायरेक्शन के अलॉन्ग सेपरेट एनालिसिस करेंगे. तो x के अलॉन्ग मैं सबसे पहले आपको बताता हूं. तो x को देखिए, सिर्फ y को भूल जाइए. तो हमें क्या मिला, u x इज इक्वल टू u cos थीटा. ओके, x एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप एक्सेलरेशन देखना चाहें, हाँ, तो जो एजम्पशंस हैं इस स्टडी में वो मैं बताना भूल गया था. तो एजम्पशंस हैं कि हम एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और जो प्रोजेक्टाइल है वो अर्थ के सरफेस के बहुत पास प्रोजेक्ट किया जाए, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर हमेशा कांस्टेंट है. तो एक्स डायरेक्शन में जब हम देखें तो कोई और फोर्स नहीं है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा. एयर रेजिस्टेंस भी हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन विल बी 0. अब हम इसी का एनालिसिस y डायरेक्शन में करते हैं. तो हमें क्या मिलेगा, y डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन व्हाट वी विल गेट इज u sin थीटा, राइट. y डायरेक्शन में अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के कारण, और वो किस डायरेक्शन में है, वो नेगेटिव y डायरेक्शन में. तो a y that will be equal to minus g. I will draw also g downwards. Okay, इतना एनालिसिस हम कर चुके हैं. अब हम और इसको एनालाइज करते हैं मोशन को. तो इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जिसको हमें फाइंड करना होता है. जो a से b का डिस्टेंस है which this projectile travels on the surface of the earth, this is called range. We denote it by r. Okay, जो मैक्सिमम हाइट ये प्रोजेक्टाइल y डायरेक्शन में कवर करता है
इस डिस्टेंस को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, और टोटल टाइम विच दिस पार्टिकल टेक्स फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टिल द टाइम ऑफ इट्स लैंडिंग, इस टोटल टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसको एनालाइज करते हैं। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूं मैं आपको। तो ऐसा होता है कि अगर हम इस लाइन के अबाउट देखें, ये लाइन में ड्रॉ कर देता हूं। ओके, ये एस और से एस डैश, ओके, ये पॉइंट एस डैश है। इफ वी सी अलोंग दिस लाइन, ये मोशन आपको कुछ सिमेट्रिक सा दिखेगा, लेफ्ट और राइट पार्ट। तो इसकी खास बात ये है कि लेफ्ट पे अगर आप कोई पॉइंट देखें और उसी के करस्पॉन्डिंग आप राइट में पॉइंट ढूंढें, तो इन दोनों पॉइंट पे आपको जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो बराबर मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है इस मोशन की। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, पी पॉइंट पे मतलब यूपी का मैग्नीट्यूड। ओके, रिमेंबर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन हम देख सकते हैं कि यूपी की डायरेक्शन ऊपर है और यूक्यू की डायरेक्शन नीचे, मींस इस डायरेक्शन में। तो यूपी का जो मैग्नीट्यूड है वो यू क्यू के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और ये जो है वो हर पॉइंट के लिए वैलिड है, ये ए बी के लिए भी है, और कोई भी पॉइंट आप बीच में ले लीजिए, लेकिन बस ध्यान इस बात का रखना है कि करस्पॉन्डिंग पॉइंट होना चाहिए अपोजिट साइड का। ये नहीं है कि एक पॉइंट आपने यहां ले लिया और एक पॉइंट उसके नीचे लिया, करस्पॉन्डिंग सेम हाइट पे होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम फाइंड करते हैं जो हमारी तीन क्वांटिटीज हैं, रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके लिए हमें चाहिए होंगी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। तो मैं उसको लिखता हूं। तो हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसके लिए हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करना है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो अब इसको करने से पहले हम फटाक से देख लेते हैं कि x और y डायरेक्शन के अलोंग ब्रेक करके कि इसका प्रोजेक्टाइल का मोशन x और y डायरेक्शन के अलोंग होगा कैसे। तो y डायरेक्शन के अलोंग देखें तो ये प्रोजेक्टाइल क्या होगा, यहां से चलेगा u sin थीटा वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में g नीचे की तरफ है, तो क्या होगा, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट तक और वहां से ड्रॉप होके वापस यहां आ जाएगा। राइट, ये जो हाइट है ये कहलाएगी h। यहां टॉप पॉइंट पे देखें तो क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वापस जब ये आएगा फाइनली तो u sin थीटा से ही वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पॉइंट बी पे जब वापस आया है तो इसकी क्या होगी, u बराबर होगा, हमने अभी देखा था। तो u ही इसकी वेलोसिटी है और u का ये cos थीटा कंपोनेंट, तो u cos थीटा हो जाएगा x डायरेक्शन में, u sin थीटा हो जाएगा y डायरेक्शन में। तो वहां पे मैंने जो ड्रॉ कर दिया है ये पॉइंट b है, इसको एज्यूम कर लेना ये a से चला था। ठीक है, और x डायरेक्शन के अलोंग अगर मैं बताऊं तो a से जब ये पार्टिकल x डायरेक्शन के अलोंग चला तो इसके पास x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी, u cos थीटा। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये पार्टिकल जब b पे लैंड करेगा तब भी इसके पास जस्ट लैंड करने से पहले u cos थीटा वेलोसिटी होगी और ये रेंज के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये टाइम जो इसको यहां से जाके यहां आने में लगा और ये टाइम जो इसको यहां से A से B जाने में लगा, ये दोनों टाइम सेम होगा, विच विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। सो लेट अस फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और देखेंगे y डायरेक्शन में। ठीक है, y डायरेक्शन में A से B के बीच में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट इज v is what, u sin theta, and it is in negative y direction, so we will put u minus u sin theta plus v is equal to u plus at, u is u sin theta in positive direction plus acceleration is minus g in negative direction means minus g, a time of flight we have to find t. Okay, so we will get t is equal to 2u sin theta by g. Right, now we will find range. For range we will apply second equation of motion in which s is equal to ut plus half at square, s will be equal to r. In horizontal direction we will apply this equation. Okay, r ut, u is u cos theta in positive x direction, so positive, t is time of flight, right, which we have found just now. So it will be equal to 2u
sin theta by g plus half at square. Acceleration is 0, so this term becomes 0, so it will be 0. So on solving, what we get is cos theta sin theta into 2 sin theta cos theta will be equal to sin 2 theta, and this u becomes u square, so we will get r is equal to 2u square sin 2 theta by g. Okay, now you will find maximum height. For maximum height, we will use third equation of motion in y direction. Okay, and we will not use it from A to B, we will use it for the point A to this top point. Okay, let's name it S dash. Okay, so we get v square is equal to u square plus 2s. V is 0, so v square is 0. U square is equal to u sin theta whole square plus 2 acceleration is equal to g, that is negative direction s. S is we have to find, that is equal to h. On solving, we will get h is equal to, this will come this side and 2h will go downward, so we will get u square sin square theta upon 2g. So here we have found all the quantities which are necessary. So I hope आप लोगों को projectile motion समझ में आया होगा, and thank you for listening.